Hi. Yeah. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. I have one simple question for Pallavi ji and one for Vivek sir. Pallavi ji, obviously looking at, if you can see me, Mayur here in the center. Yeah. So obviously after Tashkent files, the Kashmir files, and how pleased are you that in this film you're not playing the cynic, and as Mr. Vivek often says, the urban Naxal. Well, I'm glad Vivek didn't give me Rema's character in this. No, for a change, I'm playing a very positive role in this film. Um, I chose to play those two characters actually in Tashkent and Kashmir because when I read the script, I fell in love with Aisha Ali Shah of Tashkent Files simply because she's shown to be a cripple in the movie. And I thought that it was very metaphorical of Vivek to write that character of somebody who's kind of handicapped in their own thinking. And for an actor, I think it's a big challenge when you cannot move around uh, to still create that energy. So Tashkent was something that I had kind of begged for because Vivek at that point in time was considering casting Ratna Shah for that character. And I said, no, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman and I'll make sure that I do justice to that role. And then I think from there, that's what prompted Vivek to probably cast me as Radhika Menon for Kashmir Files. Was it? Inspirations over there as well. See, in this film, there is no fiction. That's why it's called a true story. Uh, if you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents. That's what you can do. Perhaps you will find this is the only film which has got a true story because this book is based on this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargava called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did, and every scientist's name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and the toolkit shot. That is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real, though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. Character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined them. Hello, hello, here you. हेलो शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह जैसी फिल्में आप बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स हो, अब ये द वैक्सीन वॉर हो, एक इंडियन सिनेमा को अलग लेवल ले जाने की कोशिश है आपकी, और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं इनके पीछे विजन क्या है आपके? रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, क्या कुछ विजन है आपके, आपका मोटिव डूइंग मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस? नहीं, ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए। मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे बनती थी। और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोग को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स। यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, सारी इतनी सारी फिल्में थी और उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल। आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी। बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये।
वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. हमारी जितनी फिल्में थी अगर आप देखिए उन सब में सोशल इविल्स की होती थी और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था जो कि ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने ला के उसको रखता था. धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया. आई हैव डन नथिंग न्यू. मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है. फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें. वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है. अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर ऑस्कर विनिंग. तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है. हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना. गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं. तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है. हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नज़र से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है. तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे तब तक आम आदमी जो है, आम यंग जनरेशन जो है, हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री. दैट्स ऑल आई एम डूइंग. Dr. Bhargav, this is Rajiv Vijayakar here. I just wanted to know, see, when you thought about all this, the vaccine and all that, what were your inspirations and how did the social and political setup help you or, inspire you or pressurize you in any way? I think there was no pressure really, and Yeah, what I mean in a positive sense. But the atmosphere and the milieu was very positive as far as the support from the leadership, from the government, which was phenomenally there, as well as we were able to do unimaginable things, right from testing kits to PPE kits to gowns to oxygen to masks, and one realized that if you think of it, it can be done, and we were able to achieve it because it was an all of government approach for a lot of things. So everyone was working together, and that really was a team, and as you know that together everyone achieves more. That is the full form of a team. So that's what we were able to do. So vaccine, generally it is said that vaccine takes a certain X number of months or years to be developed. So, but you did it so quickly. So, can you tell us what is the reason and how that was achieved? So the demand was there, and work was being done on a war footing. Initially there was a restriction and lockdown, so we were working day and night during the lockdown. All the experiments, whether it be on rats or hamsters or mice or on monkeys, they were all being fast-tracked and done very fast. And then we were successful with the monkeys. We were able to go to the human phase 1, phase 2 and the phase 3 trials. विवेक जी, hello. Hello. Actually, अभी अमेरिका में ना lot of scientists from CDC and other organizations, Baylor and all, one of the top institutes in the world, they came to see films और उनके interviews भी हमारे पास. Everybody says it is impossible how you did it, how India did it. Nobody believes it. Even the top scientists can't believe how we work. But that's the advantage of being an Indian कि हम लोग जब crisis होती है तो we go out of our way to achieve things. विवेक जी, नाना सर, सिमरन सिंह, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद. द फिल्म का ट्रेलर जो बहुत ही धमाके, मतलब एक बहुत ही मूविंग है. इट्स इमोशनली एंड इट्स अ सेलिब्रेशन. एक तरफ से देखा जाए तो मेरा सवाल आप दोनों से बनता है कि नाना सर की एक खूबी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा करते थे कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं थे, वो जो उनके दिल में आता है वो ये बोलते. तो ऐसा कुछ सीन आपने कुछ देखा था इस शूट के दौरान? ना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे. पहले जवाब वो दे, फिर मैं उसके ऊपर मेरा. ठीक है सर, बता दे कुछ. नाना मतलब he's a born writer. He has this knack. आप कुछ भी करो उसमें he can add one small कुछ. He doesn't do much. ऐसा नहीं है कि सीन चेंज कर दिया, डायलॉग ही never, not even once. एक लाइन, एक वर्ड, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज हुआ. बट ही विल जस्ट कम एंड ऐड वन थिंग. वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है, नॉट ओनली फॉर हिम बट द एवरीबडी हु इज इन दैट सीन. सो दैट वे नाना के बहुत सारे छोटे छोटे इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आई थी
और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है, दीज आर सीरियस मूवमेंट्स, पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की, बिकॉज आई रियलाइज की इन ऑल द 12 स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ्स. इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को, एंड दे ऑल्सो फाउंड इट वेरी फनी. So he adds things which become very sometimes humorous, sometimes intense. But Nana is an asset. और मैं अब नाना पे बात चली तो एक और बात बताता हूँ. जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए कास्ट करना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें चाहिए. एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि somebody who is leading a team, जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया can't do it, और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से, लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट. इंडिया किसी तरह, कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए, इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी, फिर देखेंगे मज़ा आएगा, कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में. एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा. और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट. तो वो लीड करना, इतने बड़े विलन्स के सामने उसको लीड करना, उसके लिए एक पर्सनालिटी भी चाहिए थी, सिनेमैटिक पर्सनालिटी, एंड नाना फिट्स टू द टी इन दैट. दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी वो परफॉर्मेंस की, जब वो आदमी बोले तो लोगों को यकीन आए कि अगर ये आदमी बोल रहा है ये सच है तो वो सच ही है. और वो तभी आ सकती है जब लोगों व्यूअर्स के दिमाग में वो कंसिस्टेंट परसेप्शन रहा. तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिनकी पूरे बॉडी ऑफ वर्क में, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, 2-4 फिल्में तो कम से कम कहीं गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा मीडियोकर हो गया. पर आई फाउंड देयर इज़ ओनली वन एक्टर, एंड यू मस्ट एडमिट इट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप भी नहीं जानते हो. देयर इज़, अगर आप रिसर्च करें यू विल फाइंड देयर इज़ ओनली वन एक्टर इन मॉडर्न सिनेमा जिसका एक भी परफॉर्मेंस कम नहीं है. In every role whichever he has done, he has been consistently superb and wonderful, and that was Nana. And these are the two reasons why I said, कुछ भी हो, I am willing to do anything, but Nana must do this role. ये मैंने आपको भी नहीं बताया. हाँ, मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने, अगर मैं ना करूँ तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते, बाकी का मैं संभाल लूँगा. मैंने कहा मैं अंग्रेजी में जिस तरह से तू चाहता है, जो एक फ्लुएंसी चाहिए, वोकेबलरी चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, हम तो वो रट के बोलेंगे. नहीं ना, वो मुझ पे उसकी जो एक लाइन है ना, उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया, वो मुझ पे छोड़ो. और मैं सच कहता हूँ, मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा. ना तो मुझे मालूम है मैं किसका मैं चीफ हूँ, मैं कुछ नहीं. मैंने तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं की. अभी घर का ज़्यादा टीचर था तो तू तो ज़्यादा करेगी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया. हमने जितना उसने बताया उतना किया. अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में, तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी ज़ुबान निकल आती है. वो बोलेगा क्या, वो किस तरह से बोलेगा, वो अपने आप निकल आता है. तो ऐसे एक आध दो लाइन कभी निकल गई. अब एडिटर तो वही था, तो मतलब चाहे तो रख सकता था, चाहे तो निकाल दे. मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी रखी है. देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा. मैंने देखी है फिल्म, वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा. लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको, कुछ नहीं. मैं चुपचाप नीचे आके कॉफ़ी पी रहा था. बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सबका कंबाइंड. मैं ये ऐसे नहीं, सबका मिला के, कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है, आप जब देख लेंगे तो पता चलता है. कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाती है कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था, बड़ी खुशी मिली. ये एक जो थी ना, एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं मैं कहीं कितनी हद तक सही हूँ, लेकिन वो करते वक्त बड़ा मज़ा आया. ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, जो दैट इज़ द ओनली क्वालिटी विच मैचेस टू नाना पाटेकर. बाकी की तो कोई है नहीं. अनप्रेडिक्टेबल जो है, और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल है, और पूरे फिल्म में वो उसका
मतलब मैं बड़ा बड़ा खुश हूँ। वो कभी ऐसे होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं, तो ऐसे इस फिल्म में हुआ। 12-12 घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी। बट क्रेडिट गोज टू यू, अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है, और बुरा है वो भी मेरी वजह से। विवेक जी